नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये जुनैद अकरम हैं, पाकिस्तान के बड़े जाने माने शख्स हैं, जाने पहचाने चेहरे हैं, सोशल मीडिया पर यूट्यूबर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे काम करते हैं। तो इनका एक क्लिप किसी ने मुझे भेजा है कि द रियलिटी बिहाइंड आवर थॉट्स अबाउट इंडियंस। जुनैद अकरम क्लिप्स उनके चैनल का है। तो चलिए देखते हैं कि भाई वो क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ज़रा सुनते हैं। Says Pakistan's opinion on India. Hello Junaid sir, hope you're doing well. My name is ABC. I discovered you a few months back and I watch your videos every day when I travel to college, and listening to you gives me a new perspective in life. I want to ask you some things that I see online about what a normal Pakistani thinks about India. Here are some things I commonly see on internet. India does not give rights to Indian Muslims. I know this is what Pakistan's news channel shows, and even politicians say this during their speech. But in reality, all religions in India are given equal rights, and we all stay together. I have a Muslim friend in college. We eat from the same tiffin every day and stay together in class. Not only him, I have grown up with so many Muslim friends around me, and I have never seen a Muslim talking or telling me they are not getting rights or they feel unsafe. Can't you guys see that Muslim population is increasing every year in India? Why does every Pakistani think that all Muslims in India are unsafe and government don't give them rights? Yes, I agree. There are some extreme people in all the religions, but thinking all the Muslims in India are in danger is wrong. Number 2, Indians don't have toilets in their home. I have seen comments on Pakistani YouTubers' video in which Indians and Pakistanis were arguing, in which the Pakistani guy was telling you don't give rights to Indian Muslims and you guys don't have toilets in your home. To that, Indian replied and told him that the rate India is growing day by day. We are doing so good in space field. ISRO launches not only India satellites, but also other countries' satellites, and also about the investment coming from other countries in India. To which all Pakistani guy come up with, but you guys don't have toilet in your home. Why are Pakistanis still stuck on one thing, that is we don't have toilets in our home, and why can't Pakistanis say a good word about India? We were the same country before partition, so we should stay together. We could help Pakistan so much you won't need another country's help. But all Pakistan is doing is making a relations worse. Sorry for the long email, but I wanted to hear what you think about it. Hope you include this email in your video. Thank you. Hope to meet you someday. Oh, same here. अच्छा, so ये एक सवाल है from someone जो कि जानना चाहते हैं कि what's Pakistani's opinion. ज़्यादातर यहाँ पे समझाते हैं कि जी इंडिया में मुस्लिम्स को राइट्स नहीं है वगैरह वगैरह. इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, और सेकुलर कंट्री में जो है सबके राइट्स इक्वल होते हैं. जहाँ दिवाली की छुट्टी होती है वहाँ ईद की भी छुट्टी होती है. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. ठीक है. और वही बात है कि अगर इतना ही दुश्वार होता, देखिए एलिमेंट्स हर जगह होते हैं. यहाँ पे मैं कोई साइड नहीं ले रहा. जो है वो है. जितना यहाँ पे भी हिंदू कम्युनिटीज़ के साथ हो ही जाता है, फोर्स कन्वर्जन्स हो गई या टेम्पल पे अटैक हो गया, कितनी खबरें आप यहाँ भी सुनते हैं. यहाँ की भी जिस तरह यहाँ पे रेडिकल एलिमेंट्स हैं, उसी तरह इंडिया में भी रेडिकल एलिमेंट्स हैं. इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ सबके साथ ऐसा हो रहा है या हर जगह ऐसा हो रहा है. फॉर एग्जांपल कराची में मैं थोड़ा सा जुनैद भाई आपसे यहाँ पर मतलब अपना जो मेरा आइडिया है वो थोड़ा डिफरेंट है. रेडिकलाइजेशन के कई रूप होते हैं और कई स्टेप्स होते हैं. पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रेडिकल लोग हैं, बहुत ज़्यादा. मतलब जिस तरह से मैं आम लोगों में रेडिकल वाले लक्षण देखता हूँ ना, जब वो इंडिया का नाम सुनते हैं, जब वो हिंदुओं के बारे में बात करते हैं, जब वो मंदिरों के बारे में बात करते हैं, तो उससे वो नफरत हमें झलकती है. कितना ज़्यादा रेडिकल बंदा है ये. पाकिस्तान हुकूमत ने मंदिर बनाने की तजवीज़ पेश किया है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हम किसी भी तौर पे शिर्क के अड्डे को इजाज़त नहीं दे सकते, और वो भी अपने टैक्स के पैसों से. मंदिर बनना चाहिए या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं बनना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा एक इस्लामी मुल्क है. यहाँ पे ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि हम कोई ये बनाए चीज़ें ऐसी, मंदिर वगैरह या गैर मज़हब के लिए कोई ऐसी चीज़. लेकिन आप इसका उलट जब आप इंडिया में बात करोगे ना, तो आपको उस लेवल का मतलब एक तो लोग बहुत कम मिलेंगे आपको इस तरह से बात करने वाले, और जो भी मिलेंगे भी, अगर इक्का दुक्का मिल भी गए, तो वो उस लेवल पे उस नफरत से बात नहीं करते. ये बात आपकी ठीक है कि यहाँ भी लोग हैं, वहाँ भी लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है. मतलब अगर मैं एवरेज देखूँ तो अगर 22 करोड़ पाकिस्तानियों में एवरेज उनकी ज़्यादा है, जबकि 130 करोड़ का होने के बावजूद हमारा एवरेज बहुत कम है. बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे आपको
जो जिस भाषा का इस्तेमाल पाकिस्तानी अमूमन में पब्लिक रिएक्शन शोज देखता हूँ वहाँ पर चीज़ें की जाती हैं, या जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है हिंदुओं के बारे में और इंडिया के बारे में, वैसी भाषा का इस्तेमाल हमारे यहाँ जनता कभी नहीं करती। बहुत इक्का दुक्का, बहुत इक्का दुक्का। मतलब आपके यहाँ 100 में अगर 90 वैसे करते तो हमारे यहाँ 100 में शायद 10 भी ना करते हो ऐसा। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे पर्सपेक्टिव जो है मेरा अलग है। हिंदू कम्युनिटी इज़ एक्सट्रीमली सेफ। कराची में तो कुछ नहीं हुआ कभी इस तरह का वाक़या। हाँ, गोड देहात में हो जाता है, गांव में हो जाता है। कराची में नहीं हुआ? क्या बात कर रहे हो सर जुनैद भाई? सिंध का इलाका, कराची सिंध में ही आता है ना। सिंध के इलाके में हर साल 1000 से ज़्यादा लड़कियों को जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनमें ज़्यादातर हिंदू हैं, उनको अगवा कर लिया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है, बूढ़ों से बड़े बच्चों से पता नहीं कैसे उनकी शादियां करा दी जाती हैं। आप बताइए कि मर्दों को क्यों नहीं उठाया जाता? इसलिए नहीं उठाया जाता कि नस्लें बदल दो, और वो महिलाओं को बदल कर उनको, लड़कियों को उठाकर जबरन उस उम्र में उठाओ जहां पे वो डर जाएं, कुछ बोल ना पाए, तेरी फैमिली को मार देंगे। अब 13 साल की बच्ची क्या समझेगी बेचारी, वो डर जाती है। तो नस्लें ही पैदा नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है वो अपने आप कम हो जाएंगे। मर्दों को उठाने की, लड़कों को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब लड़कियां ही नहीं होंगी, लड़कियों को आप कन्वर्ट कराते जा रहे हो, उन्हें मुसलमान बनाते जा रहे हो, तो वो जो बच्चे पैदा करेंगी वो तो मुसलमान ही पैदा होंगे ना। हो गया काम खत्म। और ये मेरी रिपोर्ट्स नहीं कहती हैं, ये आपके पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स कहती हैं। जो बातें मैंने कही हैं कि 1000 लड़कियों को चेंज कराया जाता है, और ये इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स भी कहती हैं। तो इसमें मेरा कुछ नहीं है। और सिंध में तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है, क्योंकि ज़्यादातर हिंदुओं की बस्तियां वहीं पे हैं, बाकी जगहों पे तो हिंदू बहुत कम है ना। तो ये मत कहिए कि सिंध में कुछ नहीं होता है। वहाँ पे ज़ाहिर है इलिटरेसी है। यहाँ पे बहुत सारे ये केसेस जो होते हैं ना, ये इस तरह के होते हैं, ये फेक केसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल देयर वाज दिस हिंदू गाय जिसको फेक ब्लास्फेमी एलिगेशन लगा के लोग मारने आ रहे थे, बट देन द फोर्सेस इंटरवीन और उन्होंने फिर उसको पकड़ा। टर्न्स आउट उसकी दुकान पे कब्जा करना चाह रहे थे, एंड दे यूज़ दिस मेथड। अब इसका क्या ये मतलब है कि पाकिस्तान में सारे इस तरह करते हैं हिंदुओं के साथ? ऐसा नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ हिंदू। आई एम मीटिंग अ हिंदू फ्रेंड टुडे फॉर डिनर। तो यहाँ पे सब रहते हैं, खुशहाली से रहते हैं, टेम्पल्स भी हैं, दिवाली होती है, होली होती है, सब कुछ बड़े आराम से होता है। पाकिस्तान इज़ नॉट ए सेक्युलर कंट्री, उसके बावजूद यहाँ पे सब फ्रीली अपना चर्चेज में, टेम्पल्स में जाते हैं, राइट। तो इंडिया तो फिर सेक्युलर कंट्री है, और अगर इतना ही जुल्म होता मुसलमानों पे, थिंक अबाउट इट। अगेन आई एम नॉट डिनाइंग, कितनी वीडियोस हमने देखी हैं जहाँ पे गालियाँ दे रहे होते हैं, लोगों को फोर्स कर रहे होते हैं, जय श्री राम बोलो, मतलब उनकी सर्कमसिजन चेक हो रही होती हैं, थप्पड़ मार रहे होते हैं। बहुत हमने वीडियोस देखी हैं, एंड लाइक जस्ट लाइक एनी पाकिस्तानी, इवन द सेम इंडियंस, वो भी उसके अगेंस्ट होते हैं, और इतना ही अगेंस्ट होते हैं कि ये गलत है। और इंडियन हमने भी ऐसी कई वीडियोस देखी हैं जुनैद भाई, जो पाकिस्तान से आती हैं, जहां पर जो हिंदू कम्युनिटी है उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, डंडों से मारा जाता है, और बोला जाता है कि अल्लाह अकबर के नारे लगाओ, और जबरन लगवाए जाते हैं नारे। ऐसे वीडियोस मौजूद हैं, आप कहेंगे तो मैं भिजवा दूंगा आपको। कई सारे ऐसे वीडियोस मौजूद हैं। ये बात आपकी सही है कि इससे पूरी की पूरी कम्युनिटी या पूरा देश नहीं होता, लेकिन ये चीज़ें तो देखी जाएंगी ना, ये तौली जाएंगी ना। तो अगर आप ये कहते हो कि यहाँ पे ऐसा होता है, तो वहाँ भी होता है ऐसा, और ये दोनों जगह होता है, तो दोनों जगहों पे गलत है। आप समझ रहे हो मेरी बात? दोनों जगहों पे ये गलत है। तो ऐसा मत कहिए कि आप वन साइडेड बता दीजिए और ये कहिए कि वहाँ पे अल्लाह अकबर के नारे नहीं लगवाए जाते हैं, तो ये गलत है। इंडियन मीडिया जो है, गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, वो तो गोदी मीडिया की टर्म खुद उन्होंने बनाई है, क्योंकि वो बिल्कुल इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट हरकतें और इस तरह के थॉट को हवा देना, और इस तरह करके हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट करके रखना, स्पेशली इलेक्शंस के टाइम पे। देखिए जिस तरह जब मुस्कान वाला कांड हुआ था, तो क्या पाकिस्तान की मीडिया बौरा नहीं गई थी? इतनी बौराई थी कि बोली कि देखिए हम कहते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म होता है। आप मुझे बताइए जुनैद भाई, अगर आप मेरा ये वीडियो देखें, आप मुझे बताइए कि क्या स्कूल का यूनिफॉर्म अगर कोई रूल है तो वो रूल फॉलो किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? वो रूल सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है ना, वो हिंदुओं के लिए भी है, सबके लिए बराबर रूल है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा फॉर्म, और वहां पर अगर आप रिलीजन को घुसाएंगे तो प्रॉब्लम है। यहां पर कभी रोक नहीं लगी कि आप बाहर पहन के क्या जाते हो, आप घर में क्या पहन के रहते हो, आप कैसे करते हो, कभी किसी पर रोक नहीं है, किसी रिलीजन पर रोक नहीं है।
लेकिन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर वहां पर यूनिफॉर्म है तो आपको उसका पालन करना पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन उसको पाकिस्तानी मीडिया, आप गोदी मीडिया कहते हो, पाकिस्तानी मीडिया ने, मैं उसको मुल्ला मीडिया कहता हूं, पाकिस्तानी मीडिया ने मतलब तबाही मचा दी, जबकि एक किसी ने टच भी नहीं किया था मुस्कान को, किसी ने, और पूरी की तरह पूरा पॉलिटिकल मोटिवेटेड ड्रामा था वो, यही डिवाइड पैदा करने के लिए। यहां भी लोग हैं जो ऐसा चाहते हैं डिवाइड पैदा करना, क्योंकि उनकी रोटियां चल रही हैं वैसे। यहाँ पे यूज़ किया जाता है इंडिया को फॉर पॉलिटिकल माइट और अदरवाइज उसको रिटेन करने के लिए कि वो इट्स एन एनिमी, दुश्मन है और हमें साथ रहना है वरना ये इंडिया हमें खा जाएगा। इस तरह उनको भी चाहिए एक लॉलीपॉप कि वो पाकिस्तान से आतंकवादी आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वगैरह वगैरह। एक मुस्लिम डिवाइड करके रखनी है वोट बैंक के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि सारे बिल्कुल सारे भक्त हैं, पूरा इंडिया जो है वो भक्तों से भरा हुआ है या वो उस तरह का थॉट रखते हैं, ऐसा नहीं है। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। अगर ऐसा होता तो इंडिया से मास माइग्रेशन हो रही होती, इफ़ नॉट टू पाकिस्तान देन टू समवेयर एल्स, बट ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, राइट? और आबादी आई थिंक पाकिस्तान से ज़्यादा है इंडिया में मुस्लिम्स की। there are more Muslims in India perhaps than there are people in Pakistan. तो अगर ऐसा होता तो ये नंबर कभी भी पॉसिबल नहीं होता, राइट? तो अगेन रेडिकल एलिमेंट्स आर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। वो तो आपको जर्मनी में मिलेंगे, नॉर्वे में देखो ना, वो उसने रैम्पेज पे निकल गया था, न्यूजीलैंड में देखो वो भी निकल ही आया था ना। तो वो तो उन जैसे ठंडे मुल्कों में, खुशहाल मुल्कों में इस तरह के एलिमेंट्स परवान चढ़ सकते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान में लोग ज़्यादा हैं, जहाँ लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ गुर्बत ज़्यादा होती है, जहाँ गुर्बत होती है वहाँ लोग ज़्यादा होते हैं। एक्चुअली रिच कंट्रीज़ एंड रिच पीपल हैव लेसर किड्स फॉर अ रीज़न। तो वहाँ पे फिर इस तरह के लोगों को एक्सप्लॉइट करना बड़ा आसान होता है। इट्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर एक्सप्लॉइटेशन, बिकॉज फारिग हैं, क्या करें, चल भाई ये कर लेते हैं, आज यहाँ हमला कर लेते हैं, इसका टेम्पल तोड़ देते हैं, उसकी मस्जिद तोड़ देते हैं। तो ये चीज़ है। तो अगर तो इस तरह का होता कि उनको बाकायदा मार्जिनलाइज किया जा रहा होता, या गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल रही या ये नहीं मिल रहा, तो एक चीज़ सामने होती। खैर, आई होप जो थोड़ी बहुत भी है वो भी ना रहे, ताकि लोगों का ये शक ख़त्म हो जाए एंड पीपल लिव इन हार्मनी। दूसरी बात जो टॉयलेट वाली बात है, ये उसी तरह की है जिस तरह हम टी इज़ फंटास्टिक लेके बस बैठ गए हैं और वो इंडिया क्या क्या कर रहा है और हम बस ये स्लोगन्स लेके बैठे हुए हैं। अब ये टॉयलेट वाली बात जो है वो कभी चल गई होगी, किसी कोई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी होगी, उसके बाद से हमारे लोगों ने ये चीज़ पकड़ ली है। अगेन वो लूज़र मेंटालिटी है, और खुद दिमाग में टॉयलेट है तो हर वक्त वो टॉयलेट ही नज़र आता है। व्हाट दे डोंट सी इज़, अगेन यू डोंट नीड। ये बड़ी ज़बरदस्त जुनैद भाई आपने लाइन के, दिमाग में टॉयलेट भरा है तो उनको टॉयलेट ही नज़र आता है कि इंडिया में टॉयलेट नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत आला, बहुत आला। फॉर दैट आपके पास अब इंटरनेट है, आप आराम से यूट्यूब पे जाएं। जिस तरह मैं रोज़ाना शाम को सैर पे निकल जाता हूँ, किसी भी शहर का नाम लिख के आगे 4K लिख दें तो उस शहर के फुटेजेस आती हैं। तो आप हैदराबाद देख लें या गुजरात का कोई शहर देख लें इंडिया में, तो वहाँ देखें हैदराबाद में अमेज़ॉन का ऑफिस की तस्वीरें देखें, आप गूगल करें और सोचें ऐसा ऑफिस पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है और वहाँ हैदराबाद में है, और आई थिंक बैंगलोर में भी इसी तरह का है। तो ये चीज़ें देखें, क्वेश्चन करें अमेज़ॉन वहाँ क्यों है, यहाँ क्यों नहीं है, राइट? बहुत सारी चीज़ें, अभी जैसे उज़ैर यूनुस वाज इन इंडिया, आज ही मैं उनका क्लिप देख रहा था, पान वाला भी QR कोड ले रहा है, चना चाट वाला भी QR कोड ले रहा है। उज़ैर परेशान था कि लोग चना चाट खा रहे हैं और जा रहे हैं, पैसे की ट्रांजैक्शन कोई नहीं हो रही, टर्न आउट QR कोड से हो रहा था। टैक्स नेट में ले आए वो अपने दुकानदार को। हमारी सबसे बड़ा जो मसला है पाकिस्तान का वो रेवेन्यू कलेक्शन इसलिए है बिकॉज हमारी 85 to 90%, इनफैक्ट 95% इकॉनमी जो है गोस्ट इकॉनमी है। इट्स इनफॉर्मल इकॉनमी। आपने कभी किसी दुकान के ऊपर उसके नाम के साथ उसका टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर देखा है कि वो ये आपका दुकान वाला टैक्स देता है? नहीं देता। इंडिया में दे रहे हैं लोग। या फिर ये कि अगेन उज़ैर टोल्ड इन वन ऑफ हिज वीडियोस कि द ड्राइवर हु वाज टेकिंग हिम फ्रॉम गुजरात फ्रॉम वन सिटी टू अनदर वाज रियली अनॉयड बिकॉज वो टोल पे कैश दे रहा था। तो उज़ैर ने पूछा मसला क्या है, उसने बोला कैश पे 2x देना पड़ता है, और जो टोल का जो स्टिकर होता है, जैसे दुबई में सालिक स्टिकर बोलते हैं, उस कार रेंटल वाले के एम्प्लॉय ने रीलोड नहीं किया था उस पर कैश, तो उसको डबल भरना पड़ रहा है, राइट? तो थिंक अबाउट दीज थिंग्स कि इस बारे में सोचें।
टूर कर, अब तो इंटरनेट है। आई थिंक इंटरनेट के बाद अगर कोई इस तरह की बात करता है ना इंटरनेट के होने के बाद, तो अल्लाह ही हाफिज़ है उनका फिर। अच्छा, इस पर मैं बात करना चाहता हूँ क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों से ना मैं बहुत परेशान हुआ। तो मैंने भी एक वीडियो बनाया, टॉयलेट एक पाकिस्तानी का था। इतना ज़्यादा मेरे पास कमेंट आने लगे, इतने ज़्यादा कमेंट्स आने लगे, मैं परेशान हूँ। मैंने कहा यार क्या है, फिर मैं रिसर्च करने बैठा, फिर जो मेरे पास डेटा आया, सब कुछ सामने आया, उसके बाद तो मैंने पाकिस्तानी लोगों की बोलती बंद कर दी कि टॉयलेट पे। फिर अब मेरे पास बहुत इक्का दुक्का मैसेज आते हैं, अब नहीं आते मैसेज, बहुत इक्का दुक्का, पहले बहुत आते थे मैसेज। उसका लिंक मैं दे दूंगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके वो वीडियो देखिएगा, बहुत मजा आएगा आप लोगों को वीडियो में। चैनल डिफेंस डिटेक्टिव का है, लेकिन वीडियो मैंने बनाया था टॉयलेट पे क्योंकि वो प्रोपेगेंडा चल रहा था। तो मैंने कहा कि प्रोपेगेंडा को बस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको लेकर मेरे पास जो सबसे बड़ी बात होती है ना, इसको लेकर इमरान खान ने क्या कहा था वो मैं एक बार फिर से, अगर पाकिस्तान के लोगों के दिमाग में कोई शक व शुबा मौजूद है तो मैं एक इमरान खान जब आपके पीएम थे तब उन्होंने क्या कहा था टॉयलेट को लेकर, वो क्लिप मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहता हूँ, सुनिए। और हम अब पाकिस्तान में जब फिरते हैं तो ये अभी अमीन असलम ने आपके सामने स्टेटिस्टिक्स रखी कि सिर्फ 42% पाकिस्तानियों के पास टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं और उतने ही पाकिस्तानी हैं जिनके पास सैनिटेशन है। और फिर ये भी दिखाया कि हिंदुस्तान पिछले 4 साल में वो इस चीज़ के ऊपर काबू पा रहा है, हमारे से आगे निकल के। हमारे हालात थे उनके भी। सुन लिया आपने? तो मुझे लगता है कि इसके बाद शायद आप लोगों को बात समझ में आएगी कि ये टॉयलेट छोड़ दो, ये बीते कल की बात हो गई, ये हिस्ट्री बन चुकी है चीज़ें। समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। कुछ लोग होते हैं वो आंखें खोल के अंधे होते हैं, तो और मक्खी हमेशा गंद देखती है तो वो फिर हमेशा वही चीज़ देखेंगे, वो टॉयलेट वाली बात भी फंसे रहेंगे। हाँ ठीक है, देर कुड बी अ प्रॉब्लम अबाउट टॉयलेट्स इन इंडिया, बट देर आर ऑल्सो दीज थिंग्स दैट आर हैपनिंग, यू नो। ISRO की जैसे आपने बात की, दूसरे मुल्कों की सैटेलाइट लेके जा रहा है, हमारे मुल्क से ऊपर कुछ भी नहीं जाता। वो रॉकेट जाता है तो वो कहीं गिर के फटता है, दूसरे वाले रॉकेट नहीं बनते हमारे यहाँ। सोचने की बात है ना। और इनफैक्ट जब ISRO का जो एक कौन सा मिशन था जो फेल हो गया था, तो उस पर यहाँ जश्न मनाया था लोगों ने। एंड आई एम लाइक डूड, एटलीस्ट दे ट्राइड। आई इवन मेड अ वीडियो अबाउट इट कि वो ट्राई कर रहे हैं। आज गिरा, कल भी गिरेगा, परसों भी, लेकिन तरसों जो है वो उड़ जाएगा और फिर वो SpaceX की तरह वापस भी आने लग जाएगा एट सम पॉइंट, बिकॉज दे आर ट्राइंग, दे आर वर्किंग ऑन इट। आई रिमेंबर द मूवी ऑक्टोबर स्काई विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल मूवीज आई वॉच। तो उसमें भी वो, इट वॉज अबाउट रॉकेट बॉयज़, जिसमें इट वॉज अ ट्रू स्टोरी। कोल माइनिंग सिटी में वो बच्चे होते हैं, स्पुटनिक की नई नई न्यूज़ होती है, सो लाइक हमें भी रॉकेट बनाना है। वो बहुत सारे बनाते हैं, वो फेल हो रहे होते हैं, बट इवेंचुअली दे एंड अप मेकिंग अ गुड वन। तो ट्राइंग एंड फेलिंग इज़ बेटर देन फेलिंग टू ट्राई। हम तो चाइना को बोलते हैं हमारा सैटेलाइट ऊपर लेके चला जाए, दूसरे मुल्क को बोलते हैं। इनफैक्ट आज ही मैंने खबर देखी, सऊदी अरेबिया इज सेंडिंग अ फीमेल एस्ट्रोनॉट। ये वही मुल्क है जहाँ 3 साल पहले औरत गाड़ी नहीं चला सकती थी, अब एस्ट्रोनॉट बन के स्पेस में जाएगी। उनको भी अक्ल आ गई, दुनिया के साथ चलना है। लेकिन हम ये कमेंटबाजी, टी इज़ फैंटास्टिक, टॉयलेट नहीं है, बस इसी में लगे हुए। असल में हम नारों पे जिंदा है और फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी है हमें। वही कहते हैं ना, सुपीरियर कॉम्प्लेक्स इज़ फार मोर डेंजरस देन इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स। ये जो बात जुनैद भाई ने कही ना, ये बात मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ कि आप लोग एक सुपरफिशियल सुपरमेसी में जीते हो कि वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट। भाई अपने आप से सवाल पूछिए कि अगर आप लोग इतने बेस्ट हो तो उसका आउटकम क्या है, उसका रिजल्ट क्या है? आप लोगों ने क्या किया ऐसा? पाकिस्तान ने कुछ ऐसा अचीव कर लिया जिससे पूरी दुनिया को नाज हो कि देखो पाकिस्तानियों ने ये काम किया है, इंटरनेशनल टेररिज्म छोड़ के? नहीं है। तो इस झूठी शान से बाहर निकलिए, उस दड़बे से बाहर निकलिए, कुछ करिए। क्योंकि इन्फीरियर में एटलीस्ट यू ट्राई टू बी सुपीरियर, राइट? यू ट्राई टू कैच अप। सुपीरियर में तो आप कहते हो मैं हूँ, लाइक आई एम द वन एंड ओनली। तो फिर आप में कोई रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट रहता ही नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग प्लेग्ड हैं इस किस्म की सोच से। बट इंटरनेट इज़ हेल्पिंग आउट। इंटरनेट पे काफ़ी चीज़ें ट्रैवल करती हैं। पहले तो ज़रा स्टेट मीडिया ने जो दिखाया बस वही है। तो अब ये कि इंटरनेट इज़ डेमोक्रेटिक, इट शोज़ यू द ट्रूएस्ट पिक्चर, और वी कैन बिलीव इट इज़ डेमोक्रेटिक। तो यू कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। जैसे कि मैंने बताया, आप किसी भी शहर का डाल के रोड ही चेक कर लें, आप मुंबई का ही देख लें 4K, आपको खड्डा नहीं नज़र आएगा बहुत देर तक। मरीन ड्राइव की ड्राइव कर लें कभी यहाँ पे बैठ के। सो लुक एट दोज थिंग्स एज वेल, ठीक है।
एंड एस्पायर टू रीच दैट लेवल। लेकिन नहीं, हमने बस वी डिड समथिंग। वो हम पास्ट में रहने वाले लोग हैं एक्चुअली, वो भी पास्ट किसी और का। टर्क्स का पास ले लिया, वो हम तो बड़े अच्छे थे, हमारी हुकूमत थी। हमारी नहीं थी, टर्क्स की थी भाई। हमारी हुकूमत हमारे मुल्क में नहीं है। अगर हमारी की बात करें, हमारे मुल्क हमारे हुकूमत में नहीं है। केपी में सिर्फ 10% कलेक्शन है बिजली की। ये जो हमारे मुल्क में इतनी लोड शेडिंग होती है, उसकी वजह ये होती है कि एक बहुत बड़ा चंक आपके मुल्क में बिजली का बिल नहीं देता। अगर आप बिल लेने जाओ तो गन निकाल लेते हैं। तो इलाका गैर और कहाँ कहाँ वहाँ बिजली यूज़ होती है, बट वहाँ से बिल कलेक्शन ज़ीरो है। नमाज़ें पूरी पूरी पढ़ते हैं वो लोग, बिल नहीं देते। ठीक है, तो बात में क्या कर रहा था, कहाँ से कहाँ निकल गई। तो अब आपके पास ये गेटवे है इंटरनेट का, इसको इस्तेमाल करें, देखें, एस्पायर करें और अच्छा बनने की कोशिश करें। कमेंट बाजी से कुछ नहीं होगा। हाँ तो हम नारों पे रहते हैं, मैं यही कह रहा था। और नारे भी दूसरे के, मतलब ग्लोरी किसी और की, ऑटोमन्स की कर ली, उसकी कर ली। हाँ, मैं कह रहा था अपने मुल्क में ही हम अपना मुल्क ही पूरा रूल नहीं कर रहे, तो दूसरे आधी दुनिया पे कहाँ रूल करेंगे। There were people who happened to be Muslims. They weren't ruling the world because they were Muslim. They were conquerors who happened to be Muslims. Same goes for the scientists. They were not scientists because they were Muslims. They were scientists who happened to be Muslim. I'm not a Muslim YouTuber. I'm a YouTuber who happens to be Muslim. तो ये बस वो सुपीरियॉरिटी हमें बस असल में बचपन से फीड की गई होती है थ्रू द वर्स्ट बुक्स दैट आर देयर। और उसमें हमारी हिस्ट्री शुरू होती है 700 AD से। Even though we're sitting at the cusp of one of the oldest civilizations in the world, जहाँ से फार्मिंग शुरू हुई और कल्चर्स डेवलप हुए और क्या क्या हुआ, और हम उसी को ही निगेट करते हैं। वही वाली बात है, यू कैन ओनली, आप आगे तभी जा सकते हो जब आप यू कैन ओनली गो इन फ्यूचर व्हेन यू एक्नॉलेज योर पास्ट। हम तो एडमिट ही नहीं करते कि वी कुड हैव बीन समवेयर एल्स। We start from 712 AD when Muhammad bin Qasim came to this region. उससे पहले यहाँ कोई नहीं रहता था, अंधेरा था यहाँ पे। तो हम झूठ पे पलने वाले लोग हैं, तो झूठ पे जो पलता है वो कहीं नहीं जा पाता ज़िंदगी में। बाकी फ़र्क आपके सामने। आई एम नॉट सेइंग दूसरे मुल्क नहीं बोलते, प्रोपागेंडा हर मुल्क करता है, किसी हद तक करता है, लेकिन हमारे कुछ इतना ज़्यादा है, हेंस वी आर वेयर वी आर। तो जो लोग ये कमेंट करते हैं, जस्ट इग्नोर देम। आई मीन फातिहा ही पढ़ सकते हैं उनकी अकल के लिए कि उनको सिर्फ यही चीज़ दिखती है, उनको दूसरी चीज़ें नहीं दिखती। अच्छी चीज़ इंसान, वी डोंट सी द वर्ल्ड एज व्हाट इट इज़, वी सी द वर्ल्ड एज हु वी आर। अब चूँकि हम खुद टॉयलेट हैं दिमाग से, तो हमें टॉयलेट वाली बात नज़र आती है। अगर आप इफ़ यू एस्पायर टू बी समवन और बी समथिंग, या फिर आप में एक ड्राइव हो, आप में एक मोटिवेशन हो, या आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो, जहन से ही हो, तो आपको फिर ये चीज़ें इनोवेशन नज़र आएगी। जब आप खुद इनोवेटिव होंगे अंदर से, या आप अच्छे प्लानर होंगे, तो आपको अच्छी प्लानिंग किसी की नज़र आएगी। लेकिन जब आप खुद दिमाग से टॉयलेट होंगे, आपको दूसरों के टॉयलेट ही नज़र आएंगे, और लैक देयर ऑफ। आई होप आई आंसर ईमेल, बट ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी। अगर आपने एक क्लिप, तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया। और ख़ासकर मैं पाकिस्तानियों को कहना चाहूँगा कि जुनैद भाई को सुना कीजिए। आप लोग ये जो बातें कहते हैं उनकी गहराई को समझिए, लेकिन आप लोग तो भाई ये झूठी शान वाले, मैं सबको नहीं कह रहा, जो ऐसे लोग हैं, क्योंकि वक्त जो है ना वो रुकता नहीं है किसी के लिए, और कुछ करके दिखाना पड़ता है। आप कहते हो जी आप टर्क, सबसे बड़ी जो पहचान है ना आप लोगों की, आपके पहचान की है आइडेंटिटी क्राइसिस। और आपके यहाँ मुल्क में अब ये आवाज़ें उठने लगी हैं कि भाई आइडेंटिटी क्राइसिस में मत रहिए। जो आपकी आइडेंटिटी है, अगर आपकी आइडेंटिटी हिंदू है तो आप स्वीकार कीजिए कि हम हिंदुओं से आए हैं, लेकिन नहीं, आपको तो कभी टर्क दिखेंगे, कभी मंगोल दिखेंगे, कभी कुछ दिखेंगे। सुनिए आपके यहाँ के लोग ही कह रहे हैं, आप सुनिए। हम वो लोग हैं जो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं, शनाख्त का बहरान। हम एक ऐसी कौम है जो अपनी शनाख्त खरीदने के लिए जब जाते हैं तो हमारी जेब में टका नहीं होता, हम जानते ही नहीं हम हैं कौन। कभी हम अरब के साथ जुड़ते हैं, कभी हम फलाना, वो हमें मुंह नहीं लगाते ना, उन्होंने पहले कभी लगाया है। कभी टर्क्स के साथ, कभी ये गौरी है, ये गजनवी है, ये फलाना है, टमकाना है। वो भी तुम राणे हो, तुम चीमे हो, तुम चट्ठे हो, तुम दुग्गल हो। क्योंकि हमने अपनी शनाख्त को सिर्फ और सिर्फ इस्लाम से जोड़ा है, तो हम इस मिट्टी के लोगों को नहीं पहचानते। हमारी नज़र हमेशा बाहर की तरफ होती है, कभी अरब की तरफ, कभी तुर्की की तरफ।
अपने लोगों को हम नहीं मानते। सुन लिया आपने? तो अभी भी वक्त है, संभल जाइए। नहीं संभलेंगे तो कल को क्या होगा पता नहीं। और बाकी मैंने टॉयलेट वाली बात पे कही दी। इसरो क्या कर रहा है देखिए, इसरो ने अभी जो है वन वेब की 36 सैटेलाइट्स और भेजी हैं हमने, और ये खुद से भेजी हैं। ये दूसरे देश की सैटेलाइट्स हैं और हम भेज रहे हैं, और ये हमारे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था। इससे पहले भी हम 36 भेज चुके हैं, 36 और ये हमने भेजी हैं। तो सोचिए कि हम तो इस एडवांसमेंट में आ गए हैं कि अब हम दूसरे देशों की सैटेलाइट्स को भेज रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं नए से नए। हमने रिकॉर्ड बनाया जी कि पहली कोशिश में, दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं कर सका, हम पहली कोशिश में मार्स पर पहुंच गए। सोचिए कितना प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, मेरे जैसे सारे हिंदुस्तानियों के लिए कितना बड़ा प्राउड मोमेंट था कि यार हमने कर दिखाया। पहली कोशिश में हम पहुंच गए मार्स पर, कोई नहीं पहुंच पाया था। चंद्रयान 3 की तस्वीरें सामने आ गई हैं। चंद्रयान 3 हम भेजने वाले हैं। चंद्रयान 3 पर काम चल रहा है और बहुत जल्दी वो लॉन्चिंग होगी उसकी, आप देखेंगे। इसके अलावा हम मैंड मिशन पे काम कर रहे हैं। हम अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने वाले हैं स्पेस में। सोचिए दुनिया की कुछ चंद जो कंट्रीज हैं उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे संसाधन, ऐसे रिसोर्सेज हैं जो ये काम कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। तो ये सब हमारे लिए बड़े प्राउड मोमेंट्स हैं। लेकिन आप लोग वही टॉयलेट, टी इज फैंटास्टिक। अच्छा उससे क्या हो गया टी इज फैंटास्टिक से? वो 93,000 का टी, उससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता ना। 71 में आपका देश बट गया, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि आपकी टू नेशन थ्योरी जो थी वो फेल हो गई। एक ही मजहब के लोग दो अलग अलग देश बन गए, फेल हो गई आपकी थ्योरी। जिस थ्योरी की आप बात करते हो वो थ्योरी तो हमारे यहां फेल है। हमारे यहां हिंदू मुसलमान साथ रह रहे हैं ना, आपके बनने से पहले से रह रहे हैं, आपके बनने के बाद भी रह रहे हैं, और आपसे ज्यादा खुशहाल हैं, आपसे ज्यादा खुश हैं, आपसे ज्यादा सुखी हैं। बाकी आप प्रोपेगेंडा करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं कहता हूं कि दिमाग चलाइए और रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए रियलिटी को। रियलिटी आप स्वीकार करेंगे तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। आप टर्क नहीं हो, आप मंगोल नहीं हो, आप शेख नहीं हो, आप सब हिंदू, मतलब हिंदू डीएनए है आप में। 99% पाकिस्तानी हिंदुओं से कन्वर्ट हुए हैं, सिखों से कन्वर्ट हुए हैं। तो ऐसा मत करिए और अपने पास्ट पर स्वीकार कीजिए और अपने पास्ट पर प्राउड फील कीजिए। वो बात सही कही, इंडस घाटी, इंडस वैली सिविलाइजेशन यहां से पैदा हुई यार, हमारे यहां से, इंडिया से। तब तो एक ही था, अब भले वो पाकिस्तान में चला गया है। तब वहां पे सिटीज थी, तब वहां के लोग, आप समझ रहे हैं, पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है कि कितनी जबरदस्त सिविलाइजेशन थी। और ये हमारी हिस्ट्री है, आपकी हिस्ट्री ऑटोमन एम्पायर नहीं है। खैर, तो चलिए जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।